नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और अपने घरों पे भी पढ़ाई कर रहे होंगे। आइए शुरू करते हैं 8वीं कक्षा का तीसरा अध्याय या तीसरा लेसन, जिसे हम जानते हैं मीजर फॉर मीजर नाम से। पहले इस चैप्टर को इंग्लिश में एक रीडिंग कर लेंगे, उसके बाद इसका हिंदी में कहानी मैं आपको सुनाऊंगा कि एक्चुअल में ये कह क्या रहा है। जिन भी बच्चों को कहीं पे कोई दिक्कत होगी, हिंदी की कहानी के माध्यम से वो सॉल्व हो जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। कृष्ण देव राय वॉज नोन फॉर हिज patronage of poets and scholars. He was equally fond of fine arts. Once he came to know about a brilliant artist named Raja Varma. He invited Raja Varma to the court and asked him to draw his portrait. The king was very pleased with the artist when his portrait was ready. In the portrait, the majestic and handsome king seemed to come alive within the frame. Apart from this portrait, Raja Varma drew images of famous characters from Puranas, of men and women, and so on. He became well known for his skills. He became close and dear to the king. Overwhelmed by joy, Krishnadev Rai called the artist and asked him what he wanted. When Raja Varma did not reply, the king, on the spur of a generous impulses, rewarded him with chief ministership. ठीक है, तो यहां तक आप लोगों ने देखा। हम बात कर रहे हैं कृष्णदेव राय के काल की। कृष्णदेव राय एक बहुत ही फेमस राजा हैं, है ना। और ये कह सकते हैं हम विजयनगर साम्राज्य के एक प्रसिद्ध राजा थे। इनके दरबार में बहुत से आर्टिस्ट थे, यानी कलाकार थे, चित्रकार थे, कवि थे, पोएट्स थे, विद्वान थे, बहुत सारे लोग थे। तो इन्हीं के दरबार में एक व्यक्ति और थे जिनका नाम था राजा वर्मा। राजा वर्मा बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे, बहुत अच्छी पेंटिंग किया करते थे। राजा वर्मा ने क्या किया, एक पेंटिंग बनाई राजा के लिए। तो राजा की जैसी ही एकदम अच्छी और सुंदर पेंटिंग उन्होंने बनाई। इसके अलावा पुराण, महाभारत जैसे बहुत सारे जो कैरेक्टर होते हैं उसके, उनकी भी बहुत सुंदर सुंदर तस्वीरें किसने बनाई, राजा वर्मा ने बनाई। ठीक है, तो राजा वर्मा की इन तस्वीरों के बनाने से और इससे बहुत ज्यादा प्रभावित हो गए थे कौन, वहां के राजा कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय राजा वर्मा को कुछ देना चाहते थे, उसकी यानी इस कला के बदले उनको रिवॉर्ड देना चाहते थे, जैसा कि आमतौर पर सभी राजा किया करते थे। लेकिन राजा वर्मा से पूछने के बाद भी उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया। तब कृष्णदेव राय ने अपने ही तरफ से उन्हें चीफ मिनिस्टर बना दिया, यानी एक राज्य का मुख्यमंत्री बना दिया। ठीक है, तो इसको यहां तक आपको याद रखना है। आगे देखते हैं। तो राजा वर्मा वॉज अ गुड मैन एंड brilliant artist. He had no experience whatsoever of administration. Soon everything was thrown into disorder because of his hasty decision and bad management of the state affairs. So people were unhappy about his administration that did not dare to complain to the king because the king was very fond of him. The elders of the town finally approached and sought Tenali Raman's help in getting rid of the new and inept chief minister. Tenali Raman assured them, I shall soon find a harmless way to remove the artist from the chief ministership. After a few weeks, Tenali Raman invited the king, the queens, and some courtiers to his house for lunch. Meanwhile, he found a very good carpenter
and put him on the job of preparing a grand feast for the king. The king and others sat for lunch, and at Tenali Raman's order, the carpenter began serving them. As soon as they put the first morsel of food in their mouths, the people began to request for water again and again. Soon after tasting the food, the king realized that the food was badly cooked and was unbearably hot. He was angry. Raman, who has cooked this food? Do you want us all to suffer and die by eating this horrible food? In his usual humble way, Tenali Raman said, I beg your majesty forgiveness. Then he said the carpenter to the king, I have never come across such an excellent carpenter, and I have put him on the job of cooking to lunch for today's feast. The king began laughing loudly. Have you lost all sense, Raman? A good carpenter should be employed to work on wood, but not on food. How did you get this funny idea? Tenali Raman asked the king, Lord, if an artist can become a chief minister, can't a carpenter become a cook? The king at once understood that Tenali Raman got a carpenter to cook the food to make him realize his error in making Raja Varma the chief minister. The king was saved from the embarrassment of removing Raja Varma from the post, because when Raja Varma came to know about the awkward incidents at Raman's house, he immediately resigned from his post. Later, Raja Varma told Tenali Raman that he was happy to remain an artist. ठीक है, तो ये पूरा चैप्टर मैंने आपको पढ़ के एक बार बताया है, और इसका अब अर्थ मैं हिंदी में बताता हूं आपको। तो राजा वर्मा वॉज अ गुड मैन एंड ब्रिलियंट आर्टिस्ट। राजा वर्मा एक अच्छा व्यक्ति था और एक बहुत अच्छा कलाकार था, लेकिन उसके पास जो प्रशासन के मैनेजमेंट की कोई भी काबिलियत नहीं थी। तो उसके जो गलत डिसीजन थे और हार्श डिसीजन थे, उसकी वजह से जो वहाँ की पब्लिक थी उसको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन कोई भी राजा से शिकायत नहीं कर रहा था, क्योंकि राजा जो हैं राजा वर्मा को बहुत ज़्यादा खास मानते थे, उनसे क्लोज थे। इसलिए जो वहाँ के बड़े बुजुर्ग थे वो किसके पास गए? तेनाली रमन के पास गए और अपनी समस्याएं किससे बताई? तेनाली रमन से बताई। तेनाली रमन ने उनको आश्वस्त किया कि मैं कोई ना कोई ऐसा तरीका जरूर निकाल लूंगा जिससे कि राजा वर्मा को अपने मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा या उनको हटा दिया जाएगा। ठीक है, फिर कुछ हफ्तों के बाद जो तेनाली रमन थे उन्होंने अपने घर में एक भोजन का आमंत्रण सभी को दिया, उसमें राजा भी शामिल थे। भोजन को बनाने के लिए उन्होंने एक बढ़ई को, या जो कारपेंटर जो होता है, जो लकड़ियों का काम करता है, ठीक है, उसको बुलाया। ठीक है, और उसको बोला कि आप क्या करिए, खाना बनाइए। और वो कारपेंटर जो था उस राज्य का सबसे अच्छा कारपेंटर था। ठीक है, जब कारपेंटर ने खाना बनाया और इनको सर्व किया, राजा और उनके साथियों को सर्व किया, तो उन लोग बार बार पानी मांगने लगे। ठीक है, और जब राजा ने उसे खाया तो राजा को भी लगा कि जो खाना है वो बहुत ज़्यादा बेकार बना है और बहुत ज़्यादा मिर्च है इसमें, है ना। इसलिए सभी जितने भी दरबारी हैं सभी खा के इसको क्या कर रहे हैं, बार बार पानी मांग रहे हैं और खा नहीं पा रहे हैं। तभी राजा ने तेनाली रमन को बुलाया और ये बोला कि इतना गंदा खाना खिला के क्या तुम मुझे और हमारे दरबारियों को सबको मारना चाहते हो? ठीक है, इस खाने को कैसे खा सकते हैं?
तो तेनालीरामन ने उनसे माफ़ी मांगते हुए बड़े ही कह सकते हैं हम्बल तरीके से, सद्भाव तरीके से किसको बुलाया, कारपेंटर को उनके सामने बुलाया और बोला कि ये पूरे राज्य का सबसे अच्छा कारपेंटर है, इसलिए मैंने इसे किस में लगा दिया, आज के भोजन को बनाने के लिए लगा दिया। ठीक है, तो राजा बहुत तेज तेज से हंसने लगे और बोलने लगे कि जब ये जो कारपेंटर है ये तो लकड़ियों का काम करता है, उसमें महारत इसको हासिल है, तो तुम इससे खाना क्यों बनवा रहे हो, ये आइडिया तुमको कहाँ से आ गया। तो तेनालीरामन ने बोला कि जब एक पेंटर, आर्टिस्ट जो है ना, कलाकार जो है, वो मंत्रिमंडल में शामिल होकर चीफ मिनिस्टर बन सकता है, यानी मुख्यमंत्री बन सकता है, तो एक कारपेंटर खाना क्यों नहीं बना सकता। ठीक है, इस बात को सुनकर राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने कह सकते हैं उनकी जो एम्बैरेसमेंट थी, है ना, कि अब राजा वर्मा को मंत्री पद से हटाना पड़ेगा, ये भी उनको झेलना नहीं पड़ा, क्योंकि जब राजा वर्मा को खुद इस बात का पता चला कि तेनालीराम के घर में ये सब कुछ हुआ है, तो जो राजा वर्मा थे उन्होंने खुद ही मंत्री पद से क्या दे दिया, इस्तीफा दे दिया। और राजा वर्मा बाद में तेनालीरामन से बोलते भी हैं, धन्यवाद के सुर में ये बोलते हैं कि मैं एक कलाकार के रूप में ही खुश हूँ। तो इस तरीके से ये कहानी समाप्त होती है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी आप बताइएगा। और इस कहानी से हमको ये शिक्षा मिलती है कि जो बुद्धिमत्ता है ना, और जो हमारी प्रतिभा है, अगर वो प्रतिभा सही क्षेत्र में लगेगी तब तो वो हमारी यानी प्रगति करेगी और राज्य की प्रगति करेगी, लोगों की भलाई करेगी। लेकिन अगर उस बुद्धिमानी का दुरुपयोग किया जाएगा या गलत क्षेत्र में उपयोग किया जाएगा तो वो नुकसान भी पहुंचा सकती है। ठीक है, तो जिस भी व्यक्ति की महारत जिस क्षेत्र में है उसको उसी क्षेत्र में काम दिया जाना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे एक इंटेलिजेंस भी दिखता है तेनालीरामन का कि किस तरीके से तेनालीरामन ने बिना किसी कंप्लेन या किसी भी तरीके की ऑकवर्ड सिचुएशन क्रिएट किए बिना ही राजा को यह एहसास कराया कि कैसे उन्होंने एक गलत फैसला लिया है जिसको सुधारने की आवश्यकता है। हालांकि बाद में राजा वर्मा को भी यह एहसास हुआ कि उनको अब मंत्रिपरिषद से इस्तीफा दे देना चाहिए। आइए देखते हैं इसके प्रश्न उत्तर। यहाँ पे बहुत सारी मीनिंग दी हुई है। अगर आपको किसी मीनिंग में कोई भी डाउट होता है तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम लोग यहाँ पे सीधे प्रश्न उत्तर में आते हैं, है ना। Who was invited to draw the king's portrait? ठीक है, तो किंग के पोर्ट्रेट को ड्रॉ करने के लिए किसको बुलाया गया था? तेनालीरामन को, कारपेंटर को, एल्डर ऑफ द टाउन को या राजा वर्मा को? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, राजा वर्मा इसका सही जवाब होगा। ठीक है, व्हाट डिड द आर्टिस्ट गेट एज अ रिवार्ड? ठीक है, तो जो आर्टिस्ट थे राजा वर्मा, उनको रिवार्ड के रूप में तेनालीरामन ने क्या दिया था? What did the artist get as a reward? Money, praise, चीफ मिनिस्टरशिप, किंगडम? तो इसका सही जवाब है चीफ मिनिस्टरशिप उनको प्रदान की गई थी। द आर्टिस्ट एडमिनिस्ट्रेशन मेड द पीपुल ऑफ द किंगडम। ठीक है, द आर्टिस्ट एडमिनिस्ट्रेशन मेड द पीपुल ऑफ द किंगडम हैप्पी, अनहैप्पी, सेटिस्फाइड, प्लीज्ड। तो इसका सही जवाब है अनहैप्पी। ठीक है, जितने भी लोग थे वो उससे असंतुष्ट हो गए थे और दुखी हो गए थे। ठीक है, तो इसको याद रखना है। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। Why were the people unhappy with राजा वर्मा's एडमिनिस्ट्रेशन? ठीक है, तो राजा वर्मा के एडमिनिस्ट्रेशन से जो लोग थे वो अनहैप्पी क्यों हो गए थे? इसका जवाब हमको कैसे लिखना है ये मैं आपको बताता हूं। आपको आंसर शुरू करना है द पीपुल अनहैप्पी विथ राजा वर्मा एडमिनिस्ट्रेशन बिकॉज आगे आप लिखेंगे यहां से, बिकॉज दो राजा वर्मा वॉज अ गुड मैन एंड ब्रिलियंट आर्टिस्ट, ही हैड नो एक्सपीरियंस व्हाटएवर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, soon everything was thrown disorder because of his hasty decision and management of state affairs। इसको आगे आप जोड़ देंगे बिकॉज के बाद। ठीक है, तो ये सारी लाइन अगर आप जोड़ देंगे तो आपको ये आंसर आपका तैयार हो जाएगा। अगर आपको ये दिख नहीं रहा होगा, क्लियर नहीं दिख रहा होगा यूट्यूब में ना, तो आप यूट्यूब की स्क्रीन को थोड़ा सा टच करके बढ़ाएंगे ना तो ये जूम होके आपको दिखने लगेगा। अगर उसके बाद अगर आपको धुंधला दिख रहा होगा तो धुंधला दिखने के लिए, हटाने के लिए आपको साइड में 3 डॉट बटन दी होगी, वहां पे आप क्लिक करेंगे और उसके बाद वीडियो क्वालिटी को जाके बढ़ा लेंगे, है ना। अगर 144 में होगा तो उसको कम से कम 480 में कर लेंगे, 240 में होगा तो
480 में कम से कम कर लेंगे, तो उससे आपको एकदम क्लियर दिखने लगेगा, ये जो पूरा लिखा हुआ है ना एकदम क्लियर दिखेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, व्हाट वॉज तेनाली रमन प्लान्स टू रिमूव द आर्टिस्ट फ्रॉम हिज न्यू जॉब। तो आर्टिस्ट को हटाने के लिए तेनाली रमन ने क्या किया, ये आंसर मैंने यहां पे आप लोगों के लिए लिखा है। तेनाली रमन डिवाइज्ड अ क्लेवर प्लान टू हाईलाइट द आर्टिस्ट राजा वर्मा's lack of administrative skill. He appointed a carpenter to prepare a grand feast for the king, queens, and courtiers. When the food was served, it was poorly quality and barely eatable. This made the king realize his mistake in assigning an unsuitable person to an important position. As a result, Raja Verma voluntarily resigned from his role as a chief minister. तो ये आंसर है आपका तीसरे नंबर के क्वेश्चन का। तो इसको पॉज करके आप लिख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा रिवर्स कर लीजिएगा वीडियो को, तो भी आपको ये पूरा आंसर दिखेगा, तो आप लिख सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं, Why did तेनाली रमन ask a carpenter to cook food for his feast? यहां पे हम लोग तीसरे आंसर को देखते हैं। तेनाली रमन यूज्ड अ कारपेंटर टू कुक, प्रोवाइडिंग mismatched skill created chaos like appointing an artist as minister. The poorly cooked food highlighted the need for expertise specific roles, है ना, जहां पे जिस व्यक्ति का रोल हो उसको वहीं पे लगाया जाए, ये इससे हमको पता चलता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डज द टाइटल मीजर फॉर मीजर मीन। ठीक है, तो यहां पे हम लोग देखते हैं आंसर 4, द टाइटल मीजर फॉर मीजर सिंबलाइज जस्टिस एंड प्रोपोर्शनैलिटी, है ना, जस्टिस एंड प्रोपोर्शनैलिटी सजेस्टिंग दैट एक्शन एंड जजमेंट्स आर रेसिप्रोकेटेड. It questions fairness, human hypocrisy, and the complexities of balancing morality with justice. ठीक है, तो ये पूरा आपके चैप्टर के जो मेन राइटिंग वाले क्वेश्चंस हैं वो हैं, इसको आप लिख सकते हैं कॉपी में, इसको लिख लीजिएगा। और देखते हैं कुछ क्वेश्चंस और हैं। राजा वर्मा बिकम क्या, तो यहां पे ये ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, ये कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, इनमें से आपको चुनना है कि यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में क्या फिल करना है ना। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, चूज द मोस्ट सुटेबल फ्रेज दैट विल हेल्प टू कंप्लीट द सेंटेंस। तो राजा वर्मा बिकम क्लोज एंड नियर टू द किंग, तो यहाँ पे क्या आएगा, क्लोज एंड नियर टू द किंग, पहले वाले में आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद है द फूड वॉज, है ना, अनबियरेबली हॉट, ये सेकंड नंबर पे आएगा। The food was unbearably hot. फिर तीसरे नंबर पर, Do you want us to by eating this horrible food, ये थर्ड नंबर पे आएगा। Suffer and die. Do you want us to suffer and die by eating this horrible food? यानी इसको कंप्लीट कहां से करना है, इसको कंप्लीट करना है आपको चैप्टर को पढ़ के, उसकी लाइन से ही ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं। बाकी दोनों को भी आप कंप्लीट कर सकते हैं, इसको करने की कोशिश कीजिएगा। अगर कुछ नहीं बनता है तो मेरे से पूछिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये आपको बताया गया है कि कहाँ पे इसको किससे जोड़ना है। तो जो शुरू में मीनिंग्स दी हुई है ना, यहाँ पे ये मीनिंग्स, इसको आप पढ़ेंगे ना जब, तो वहां पे आपको उसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अगर नहीं मिलता है तो फिर मुझे बताइएगा कि सर ये वाले क्वेश्चंस का आंसर भी बता दीजिए, तो नेक्स्ट जो मैं वीडियो बनाऊंगा तो वहां पे उसको डील कर लूंगा, या एक अलग से क्वेश्चन आंसर का वीडियो भी आप लोगों के लिए बना दूंगा। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा तीसरा चैप्टर खत्म होता है इंग्लिश रीडर का, 8वीं क्लास का। और आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।